Prime Minister Narendra Modi visited Kashmir today for the first time after the abrogation of Article 370. He dedicated multiple developmental projects in the valley, including the Holistic Agricultural Development Program, which is valued at 5,000 crore rupees. He also initiated the integrated development of Hazrat Bal Shrine project in Srinagar. The PM also emphasized the development of Jammu and Kashmir following the abrogation of Article 370 and stated that a developed Jammu and Kashmir is the priority for a developed India. Hours after Prime Minister Modi's rally, in this telecast, we have the beneficiaries of PM schemes who are going to be speaking to us live on NewsX. We have exclusive ground reports from Jammu and Kashmir. My colleague Ashik, in fact, is standing with some of them. I'm going to, in fact, cross over to him and tell Ashik Mir to take the stage. Ashik, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आशिक, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? Ashik Mir, okay. Let me in fact go to Ajay Jandial as well. Ajay, if you're here with us. Yes, I am. Ajay is joining us from the Palori area in Jammu at this point in time. Ajay, the Prime Minister emphasized how a developed Jammu and Kashmir is a priority for a developed India. The government is leaving no stone unturned when it comes to including Jammu and Kashmir and all the benefits that the rest of the states got to enjoy for so long. Speak to the people who are with you and try to tell us what they feel about this, this new wave that has hit Jammu and Kashmir. Well, you rightly said, and Prime Minister, when he was talking about the development in the Jammu and Kashmir, that that is something which has happened in the recent past. And before I speak to the people over here, I would like to show you the visual of this bridge. This bridge is a 5-kilometer long flyover which was constructed in last about 3 to 4 years, and definitely it was it was constructed by the agency in a record time, because if you talk about this Jammu-Akhnur highway, that was the worst highway which basically was facing the traffic jam, and not only the people were suffering, but the security forces personnel, those who were basically moving from Jammu to Rajouri, Punch and the line of control area, they were even not able to basically reach on time, and number of people have died because of this highway. But now the construction work has started. This is a wonderful example of a 5-kilometer flyover which was constructed here. But in the other further highway towards Rajouri and the Punch, number of long tunnels as well as the bridges are being constructed to ensure that people and security forces will reach on time on the line of control area and protect our borders and protect the civilians over here. We have with us senior people of this area. We have with us some political leader of Bharatiya Janata Party senior leader and the common masses as well. We'll speak to them as well that what they have to say. ये बताइए कि जो पिछले कुछ समय में इस इलाके में हुआ है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे हुई है और उसी के नाम पर जो है वो जम्मू कश्मीर को जीतना चाहते हैं, लोगों को जीतना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए जंजाल साहब, जो पिछली रैली जम्मू में मोदी जी की हुई और आज जो श्रीनगर में उनकी रैली हुई है, और जिस तरह का खराब मौसम के बावजूद भी जो जन सैलाब जहाँ पे मोदी जी के समर्थन में उतरा है, ये दर्शाता है कि जो जम्मू कश्मीर की बुनियाद मोदी जी ने धारा 370 और 35 से हटने के बाद शुरुआत की थी, आज लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए खड़े हैं। जहां तक डेवलपमेंट के काम की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, खाली ये जो जम्मू पूंछ से राजौरी का ये नेशनल हाईवे ही नहीं, चाहे हमारा सुख महादेव से डोडा के माध्यम से कश्मीर तक का नया हाईवे हो, 37 बड़े टनल जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, चाहे दोनों शहर जो हमारा जम्मू शहर है या श्रीनगर शहर है, दोनों के सर्कुलर रोड बन के लगभग तैयार हैं। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर का है, बड़ी तेजी से बढ़ा है। और जहां तक इस नेशनल हाईवे की जो जहां पे आज हम खड़े हैं, जो अखनूर से लेके पूंछ तक का काम चल रहा है, आप जानते हैं कि जहां क्योंकि हमारा पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर जो है नौशहरा बॉर्डर है, चाहे वो हमारा मेंढर सुरनकोट का बॉर्डर है, चाहे ये अखनूर की पलाए वाला बेल्ट है, तो पूरे का पूरा एरिया जो है ये बॉर्डर एरिया है। वो पूरा आर्मी को जहाँ बड़ी दिक्कत आती थी और बार बार जब भी कभी जंग का माहौल रहता था तो जहाँ से गाड़ियां निकलने में दिक्कत होती थी। और जहां तक शहर की भी अगर हम बात करें तो जहां इस रोड पे आपको पता है कितने ज्यादा कम्युनिटी हॉल हैं, शादियों के सीजन में कई बार ऐसा होता था कि दूल्हा गाड़ी में ही रह जाता था और लगन जो है वो निकल जाता था। तो इसलिए ये जो डेवलपमेंट है आज बड़ी तेजी से हुई है। इसका काम आप जानते हैं 2019 में शुरू हुआ था,
उसके बीच में कोविड की इतनी बड़ी महामारी भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड में भी इसका काम चलता रहा और रिकॉर्ड समय में ये बन के आज तैयार है। और पिछले ये लगभग 7-8 महीने से लोग ये जो है चल रहा है। We have with us some Kashmiri Pandit as well. आप बताइए, जिस तरीके से जो बदलाव हुआ है, क्या लगता है ये बदलाव तरक्की के साथ साथ और बदलाव, पॉलिटिकल बदलाव भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ला सकता है? काम किया मोदी साहब के वक्त में, ये आज तक हमने कभी नहीं देखा। और मैं खुद कहता हूँ कि हमारे जो मोदी साहब की नेक्स्ट गवर्नमेंट, जो इससे काम किया किसी ने आज तक काम नहीं किया। जो इससे प्रैक्टिकली दिखाया, लोग कहते थे मगर इससे प्रैक्टिकली दिखाया कहाँ क्या होता है क्या नहीं हुआ, क्या क्या किया थे, जो हम इसको हम कभी भूल नहीं सकते। आपको उम्मीद है कश्मीरी पंडित जो वापिस जाने की सोचते थे, वो सपना अब कभी पूरा हो पाएगा? और पक्का 100% पक्का है, वो काम हो रहा है, काम कर रहा है और सबको बोल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है प्रैक्टिकली। ये नहीं सिर्फ बोलना है कि चल लोग कहते हैं हम ये करिए, जो मोदी साहब ने कहा वो किया। जिस तरीके से तरक्की हो रही है, क्या लगता है जो तरक्की है वो क्या ग्राउंड में कहीं है? क्योंकि राजनेता जो बोलते हैं वो कुछ और होता है, अपोजिशन कहती है तो ये सिर्फ दावे हैं, बातें हैं। सर ऐसे सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मोदी साहब है तो सब मुमकिन है। जो उन्होंने तरक्की की है, हमारी इस टाइम 50 साल की उम्र हो गई है, हमने ऐसी तरक्की पहले कभी नहीं देखी। और खासकर हमारे जम्मू कश्मीर जब से 370 हटा है, तब से तो हमें तरक्की ही तरक्की मिली है और कुछ नहीं मिला। 370 का टूटने का कोई फायदा? सर बहुत फायदा है, क्यों फायदा नहीं है? हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम आजाद हम अब हुए हैं। पहले तो हम गुलाम लगते थे अपने आप को, लेकिन आज हम आजाद हुए। लेट्स स्पीक टू सम अदर पीपल एज वेल दैट व्हाट दे हैव टू से। क्या लगता है जिस तरीके से 370 टूटी, और बीजेपी और प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं 370 टूटने के बाद ये तरक्की हुई है, आप मानते हैं 370 टूटने का फायदा है या नुकसान हुआ? सर बिल्कुल 370 हटने का फायदा हुआ है। अभी आप देखिए, जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर आने से बाहर के टूरिस्ट, आप इस बार का टूरिस्ट की अगर आप देखोगे ग्रोथ रेट में बहुत हाई हुआ है। और लोग यहाँ पे जमीन लेके, लोग जैसे कि आपको पता है 370 का जो मेन होता कि बाहर का वो आके यहाँ पे अपना नहीं घर बसा सकता है। आज लोग यहाँ पे डेवलपमेंट के तौर पे आप देखिए होटल्स बना रहे हैं, विलास बना रहे हैं, और काफी ज्यादा इंफ्रा में बहुत ज्यादा ही ज्यादा तरक्की हुई है। उससे हमें लग रहा है कि आने वाला जो दौर है, जो वो एक कश्मीर में, जैसे फिल्म सिटी का आप देख रहे हैं, फिल्म सिटी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, लोग काफी ज्यादा इंफ्रा पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और 370 रखने का बहुत बड़ा जो मेजर जो फायदा होगा वो जम्मू के लोकल्स वालों को भी हुआ। 35 सेक्टरों से जो हमारी माताओं बहनों को जो हक मिला है, उसके लिए मोदी जी काबिल धन्यवाद। युवा जो है, युवा मोदी जी को पसंद कर रहा है जम्मू कश्मीर का? फाइनेंस ये तो बोलने की बात ही नहीं होती कि युवा का मोदी जी को देख के इतना उत्साह आया है हर युवा के को देखकर। मतलब मोदी जी की जो भाषण है वो सुन के इतना उत्साह मिलता है कि शायद ही पहले जितने भी प्रधानमंत्री पहले रहे हैं, किसी को भी उनसे जो मोटिवेशन मिलती है कभी नहीं मिली। नहीं, क्या लगता है युवा बंदूक छोड़कर पढ़ाई की ओर आगे आएगा, या अभी भी लगता है कि पाकिस्तान या जो एंटी नेशनल लोग थे वो उनको हाईजैक कर सकते हैं? देखो सर, अब वो समय चेंज हो चुका है। हर युवा अब अपनी क्या बोलते हैं कि अपनी लाइफ को लेके, अपने भविष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय मोदी जी ने ये नारा दिया है कि युवा को आगे लेना है। आगे कैसे ले जाना है ये दुरुस्त से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कहीं भी जहां भी आपको कहीं परेशानी आती है आप बताइए। ट्रू चैनल, प्रॉपर चैनल जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। और आगे का जो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी है। So you can see, people are saying, but they are saying they basically the way basically development took place, the way basically this flyovers, roads, IIM, AIMS, and a medical college are constructed here. Because in Jammu and Kashmir earlier, what was happening that the people, those who basically were studying for studies, they are going outside the Jammu and Kashmir. They were going to Pune, Mumbai, Bangalore, but now they will be able to basically study here for the IIT. They don't need to go outside. They don't need to go for the IIM and the AIMS as well. 2 AIMS have been, allocated to the Jammu and Kashmir, and Jammu and Kashmir become the first ever union territory having 2 AIMS. So that is something which basically are attracting the people as well, and that's why we have seen that from Srinagar to Kupwara, far-flung area of Kashmir, number of people, they have joined, Prime Minister. They wanted to see Prime Minister, listen to him, that what exactly he's planning for the future of Jammu and Kashmir.
I'm going to go and speak to my colleague Ashik Mir also, who's joining us from Kashmir at this point in time. आशिक, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जी बताइए, आप कुछ लोगों के साथ हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी योजनाओं को किक स्टार्ट किया। क्या महसूस करते हैं जम्मू और कश्मीर के लोग? ये उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं, ज़रा बात करके बताइए हमें। बिल्कुल, हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो इस रैली में शामिल थे। हालांकि फारकलंग एरिया से ये ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अभी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के बाहर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, क्योंकि इनमें एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी नजर आ रही है। रियाज साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप भी प्राइम मिनिस्टर रैली का हिस्सा बने थे, क्या कुछ महसूस किया प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच से? आपको क्या कुछ लगा? वाकई तौर पर जो डेवलपमेंट हो रही है, क्या लग रहा है आपको उस डेवलपमेंट को देखकर? देखिए सर, एज ए कॉमन कश्मीरी मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपको वसूख से कहूंगा कि हमारी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, मैं कहता हूं कि उनका 30 साल 40 साल जो उन्होंने यहाँ पे काम किया और 40 साल का उनका टोटल जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, मैं कहता हूं अगर उनकी 30 साल कारकर्दगी को हम जमा करें और फिर उसको मैं मोदी जी के 10 साल की डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के साथ कंपैरिजन करूं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के 10 साल के काम उनके 50 साल के काम के बराबर भी नहीं है। और आज जैसे आपने खुद भी कहा, आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट रैली। आज मोदी जी लगभग 12:30 के आसपास में, हम सुबह से काफी लोग थे, आप यकीन नहीं करेंगे इतना जनसैलाब वहां पे आया था। एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इतने सारे लोग आएंगे। और वहां पर बहुत और भी लोग थे जो बता रहे थे कि इतने। रिसेंटली आपने कल देखा होगा, यहाँ पर हमारे एक रीजनल एनसी के एक लीडर ने एक ट्वीट भी किया था, एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट। मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, बल्कि उन ट्वीट की वजह से वो चाहते थे कि मोदी जी की रैली में लोगों का एक वो क्वांटिटी कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं करीबन 1.5 लाख पीपल वर इन बख्शी स्टेडियम टुडे, और इतनी बिल्कुल सीटें बहुत कम बढ़ गई। आशिक साहब, आप यकीन करिए, मैं अपनी बात कहूंगा, you will not believe, I swear by God, up to 2:30 p.m. I had not taken a cup of water even. रात को we were said to sit in the hotels, in different hotels at श्रीनगर। रात को हम तो बिल्कुल जाग रहे थे, क्योंकि इतनी खुशी सबको थी कि कल पहली बार हम इतने 10 साल के बाद अपने फोन से तो रोज हम अपने पीएम साहब को देखते हैं रेगुलर बेस पे, लेकिन ये एक खुशी था हमारे दिल के अंदर थी कि कल हम पीएम साहब को ना फेस टू फेस देख रहे हैं। पीएम साहब को हम अपनी आंखों से, नेकेड आईज से उनको देख रहे हैं। तो रात में बिल्कुल समझ लीजिए हम होटल्स में बैठे थे, हम नहीं, डिफरेंट बहुत सारे थाउजेंड्स में लोगों को होटल्स में बैठे थे, क्योंकि कल मॉर्निंग में वहां पे पहुंचना था। और जब हम मॉर्निंग में निकले तो होटल मैनेजमेंट, वहां के रेस्टोरेंट्स, दे वर टोटली क्लोज्ड, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द पीपल लेफ्ट। उन्होंने 4 साढ़े 4 के आसपास में होटल से चेकआउट किया। तो उस टाइम तो आप खुद भी जानते हैं कि उस टाइम होटल रेस्टोरेंट्स में आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिल सकता। मैं अपनी बात कहूंगा, मैं जब वहां पे पहुंचा तो पूरे दिन के 2:30 बजे तक हम बिल्कुल भूखे थे, हमने पानी का गिलास भी नहीं पिया था। और मोदी जी का हमें बताया गया था 11 बजे आएंगे, लेकिन फिर हमने इतना सब्र किया कि 12:30 के आसपास में फाइनली द प्राइम मिनिस्टर केम, और उन्होंने काफी अच्छी अनाउंसमेंट्स की। और मैं एज ए मुस्लिम बताऊंगा कि मैं आपके माध्यम से अपने उन कंट्रोवर्शियल मुस्लिम लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि व्हाई वी कॉल बीजेपी कम्युनल एंटी मुस्लिम पार्टी। मतलब जब भी कहीं पे हम भाजपा का जिक्र करते हैं तो खासकर मुसलमानों के सामने हर एक के माइंड में ये बात आती है कि ये मतलब कम्युनल एक चीज है, मतलब एक रिलीजियस कंट्रोवर्सीज की ज्यादा। हाँ। तो मैं इतना खुश हुआ आशिक साहब, आप यकीन नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज, जैसे वो भाषण देते हैं, अक्सर प्राइम मिनिस्टर साहब 1-1 घंटे का भाषण देते हैं, लेकिन श्रीनगर में उन्होंने आज बड़ा ब्रीफ भाषण दिया, ज्यादा से ज्यादा 30-35 मिनट के लिए शरीफ वहां पे भाषण दिया। और उन्होंने एक बात बताई, मैं उनके भाषण की कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल उनके आई वुड बी सम 30 मीटर्स अवे फ्रॉम पीएम नरेंद्र मोदी जी। खाली मुझे और पीएम साहब के दरमियान 30 मीटर का फासला था। सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, मे भी आगे जा भी नहीं सकते। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो खास बात वही जो मैंने आपको कम्युनलिज्म का आपको बताया, उन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं रमजान
which is the sacred month of the Muslims, वो अभी आ रहा है कुछ दिनों में, 3-4 दिन के 5 दिन बाकी है। तो वो बात मेरे दिल को छू गई जब पीएम साहब ने बताया कि मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को, खासकर कश्मीर के लोगों को माह रमजान मुबारक की एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ। और उनके साथ साथ में, क्योंकि हम उस देश में रह रहे हैं जो मल्टी रिलीजियस नेशन है, यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। और कल 8 तारीख में हमारे पंडित भाई जो है उनकी हैरत नाम से एक फेस्टिवल है, कल गेस्टेड हॉलीडे है उसको चीज को लेकर। और मोदी जी ने एक साइड में पहले वाले वो सेलेबल में मुस्लिम को मुबारकबाद दी, माह मुबारक की, और दूसरे वाली सेंटेंस में उन्होंने कल की फेस्टिवल को लेकर हमारे पंडित भाइयों के लिए मुबारकबाद दे दी। ओवरऑल अगर हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, आज जो मैं कहता हूँ आशिक साहब, 53 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की आज ऑफिशियली वर्चुअली श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका इनॉग्रेशन किया, उनका रिबन काटा। और ये 53 प्रोजेक्ट्स 6,500 करोड़, दिस इज नॉट, ये कोई एक आम अमाउंट नहीं है सर, इट्स अ बिग फिगर। 6,500 करोड़ लिखने में, बोलने में और सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इतने काफी अमाउंट से आप कितनी सारी डेवलपमेंट कर सकते हैं ना, दैट इज अनबिलीवेबल एंड वी कांट थिंक ओवर दैट। और उन्होंने खासकर पीएम साहब ने बारामूला का जिक्र किया, उड़ी का जिक्र किया, कपवारा का जिक्र किया, कहा यहाँ से मैं रोड्स बनाने, रेलवेज लेने। और इतनी अच्छी बात मुझे उनकी एक लगी, उन्होंने इवन डेडलाइन तक सेट की कि इस काम को हम इस महीने में स्टार्ट कर रहे हैं, इस महीने में एंड कर रहे हैं, इस महीने में। और पीएम साहब से पहले हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब ने भी काफी अच्छी भाषण दिया और उन्होंने काफी चीजें भी बताई। तो कुल मिला के मैं कहूंगा, आज जो श्री नरेंद्र मोदी जी का कश्मीर का दौरा था, ये कश्मीर के लिए 9 साल के बाद, शायद 10 साल के बाद, 2014 में पीएम साहब या 15 में यहाँ आए थे, 9 साल के बाद वो जो आए, तो वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट कश्मीर के लिए लेकर आए। जाहिर सी बात है, एंटी पार्टीज तो डेफिनेटली अपनी बातें वो तो चाहेंगी कि यहाँ की रीजनल पार्टीज तो कहाँ चाहेंगे। अगर आप सैलाब देखेंगे सोशल मीडिया पर, आप जाइए, डिफरेंट नेशनल मीडिया काफी वहां पे था, आप देखिए हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखिए कितने सारे लोग थे। दिस इज लोगों का ये सैलाब जो है, दिस कॉजेज फ्रस्ट्रेशन फॉर दिस पॉलिटिकल पार्टीज, सो दे विल सर सच नॉनसेंस थिंग्स ना, कुछ ऐसी नॉनसेंस चीजें वो उठाएंगे ताकि कॉमन लोगों में वो चीजें फैलाएं ताकि लोग इनसे ना जुड़े। लेकिन अब कश्मीरी कौम बहुत बेदार हो चुकी है। वी आर इनफ मैच्योर, वी आर इनफ मैच्योर, वी आर so mature कि we are able to make difference between right and wrong. We are now so mature to think which party is better for us, which party is to be chosen, so that our Kashmir will really move towards peace, progress and prosperity. So this is the happiness as you can see among the youth of Kashmir. जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी किया कि डेवलपमेंट हमारा सबसे बड़ा मिशन है, और उसी डेवलपमेंट के हवाले से आज बात हुई। एक और शख्स हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। तो कैसा लगा आज प्राइम मिनिस्टर आए? बहुत ही अच्छा लगा जो हमारे आंध्र यहाँ पे कश्मीर आए। उन्होंने बात की खाली डेवलपमेंट को लेके और यहाँ के टूरिज्म को लेके, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि 53 प्रोजेक्ट जो यहाँ पे नए इनॉग्रेट उन्होंने कहा कि, और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, आप खुद भी वहाँ पे मौके पे थे, जो वहाँ का जो बच्चा बुजुर्ग जितनी भी हमारे माएँ बहनें थे, हर एक के हाथ में तिरंगा लेके रोड पे, बाहर सड़कों पे खड़ा थे। और ऐसा जैसे कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल रीजनल पार्टी देखे ये सब भाईचारा की तरह रह रहे हैं। और जितने भी कश्मीरी आपने सब लोगों को हम तो खुद आज तो हम तो बहुत खुश है, सारे कश्मीरी जितने भी कश्मीर के नौजवान हैं, आप देखो आज जितनी तो दिन रात लग जाता था हमें जम्मू पहुंचने में, आज तो देखो 4-5 घंटे में इंसान। बिल्कुल, ये वो डेवलपमेंट है, दिस इज द डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट के लिए जो है यहाँ पर आम कश्मीर किस तरह से परेशान था, और ये तस्वीर जब 2019 के बाद बदली है, और उसका जीता जागता सबूत यहाँ पर ये नौजवान लोग दे रहे हैं। जी बिल्कुल आशिक, बिल्कुल ठीक कहा इन लोगों ने, तरक्की बिल्कुल साफ दिखाई देती है जम्मू कश्मीर में। लेट मी इन फैक्ट once again go back to my colleague Ajay Jandyal. Ajay, if there are more people that you can speak with who perhaps understand what the message has been by the Prime Minister, as well as the work that has been put up by his party, in the last few years. And the Lok Sabha elections are around the corner.
And what better way to endorse, this particular development than to vote for the government that has given them this change? Well, definitely, I'll speak to some other people as well, because it's not only Prime Minister address and what they have done in the last few years, but definitely it matters that what is going to happen in next few days, because parliamentary election has to take place in the country. Let's speak to some other people as well, that what they have to say. क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, उस काम के बदले में वोट भी मिलेगा? वोट देंगे आप लोग? बिल्कुल देंगे जनाब वोट। हम तो शुरू से ही बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के सिवा किसी को वोट नहीं मिलने वाला, ना कांग्रेस को ना और किसी पार्टी को। जब पुरानी पार्टियां होती थी तो क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था? क्योंकि बीजेपी तो अब सत्ता में आई पार्टी, पहले क्या होता था? पहले यही होता था, लूट खसूट और जिना चोरी वगैरह ये वो होता था। अब तो बिल्कुल सबके सामने है, बात सच्ची है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। आपके इलाके में कब, मतलब ये जो रोड है, कभी सोचा था ये बन पाएगा? नहीं, कभी सोचा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है, आपने जो तरक्की हो रही है, ये तरक्की लगता है बीजेपी की दशा भी बदलेगी आने वाले समय में? ठीक हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है। संजय जी, वोट मिलेंगे इसके नाम पर, क्या लगता है? देखिए अजय जी, भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए ही सिर्फ राजनीति नहीं करती है। जैसे मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम सेवा के लिए काम करते हैं, और आज अगर आपने मोदी जी का भाषण पूरे ध्यान से सुना होगा, उन्होंने एक वाकया वहां पे कोट किया था कि हमने दिल से प्रयास किया था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलों को छू पाएं। तो ये आपने आज देखा कि जिस तरह से कश्मीर में सड़कों पर ढोल नगाड़े लेकर कश्मीर का यूथ जो है आज वो निकला है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.